Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in today's lecture, we will be discussing about the GS paper. So this GS paper that I have opened it for you belongs to your year 2025. So let's see the basic instructions that have been given. There are 4 questions in all and you are asked to attempt all the questions. All right. So, sorry. Should attempt the question parts as per instructions. Next, what are they saying is marks वो ये bracket के अंदर लिख दिए जाते हैं. Then they are saying if you will not be following the limit, that is if they are asking you to write your answer in 200 words, and if you are not writing or you are not able to follow the limits, that means you will be penalized. Penalized मतलब there will be deduction of marks in your form. Then the answers must be written within the space provided in the question come answer booklet. What happens is here, supposedly this is your answer, question is written over here and there is a blank space left, so you need to just write your answers like this. Okay. So next they are saying is any page or portion of the page left in the question come answer booklet must be clearly struck off. Supposedly your answer is this, answer sheet is this, and up till here you have written पूरा लिख दिया एक पूरे पेज पर, and on the next page when you started to turn it, तब क्या किया आपने, what will happen is if only few lines you have written like this, only 2 lines you have written, then you need to strike off the empty page. ठीक है, ये थोड़ा important instruction है because most of the people do not read this और वो करना भूल जाते हैं. Next is answer must be written only in English. तभी आपको English में पढ़ाया जाता है. There are so many queries. Why are you not teaching in Hindi? Because of the instructions like this. Next, what we have is another paper. The first question. The first question, what does it say? Question number 1 says attempt all. Okay. It says attempt all of the following in not more than 200 words. Again, strictly mentioned that 200 words are to be written, so stick to that particular thing. Now what are they saying? They are asking about the Buddhism, your history part it is. Then they are asking about the socio-economic conditions of Gupta period. See, अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है, गुप्ता पीरियड पढ़ा है, जैनिज्म पढ़ा है, तो ये सबसे रिलेटेड थोड़े बहुत चीजें भी अगर आपके माइंड में होंगे, एंड इफ यू विल राइटिंग देम इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, आपने ऊपर हेडिंग पढ़ी बुद्धिज्म, ठीक है, उससे रिलेटेड मेजर मेजर चीजें आपने पॉइंट्स में लिख डाली. दे डू नॉट वांट कि आप पूरी हिस्ट्री लिखो, नो, उतना नहीं चाहिए. आप उनको कितना चाहिए कि थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए कि हाँ इतना है या इतना है, बस दैट मच विल बी सफिशिएंट. तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स आप बना के लिख दो. और जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे while मेकिंग नोट्स, तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इन नोट्स there should be approximately I would suggest 20 points. ठीक है, जिसमें से out of which 7 to 8 points आपके यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि वो नोट्स विल बी कंटेनिंग, दोज नोट्स विल बी कंटेनिंग ऑल द हिस्ट्री पीरियड ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल अचीवमेंट्स. अब आप इसके अंदर if they are asking about the cultural achievements or the administrative things, तो आप उसके अंदर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग पर्पसेस तो नहीं लिखोगे, तो चोला एम्पायर का सिर्फ कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा. तो बेसिक चीजें बतानी है अबाउट द चोला एम्पायर की. हाँ, फर्स्ट लाइन विल बी योर इंट्रो एंड देन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट इज रिव्यू. सॉरी. Review how far Aurangzeb was responsible for disintegration of the Mughal Empire. Give reason for your answer. देखो, यहाँ तक तो ठीक है. It is basically from the book itself कि हाँ ऐसा बुक में लिखा हुआ था. That will be directly from your notes. But give reason for your answer. तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को भी लेकर चलोगे. The thing is that why you are in support of Aurangzeb or why you are against Aurangzeb, that only you need to explain. So if you are for
तो देन यू विल एक्सप्लेनिंग व्हाट, यू विल बी एक्सप्लेनिंग लाइक आई एम विद हिम बिकॉज ऑफ द boons, एंड इफ यू आर अगेंस्ट तो आप लिख के बताओगे किसके बारे में, फॉर द ब्रेन सिस्टम। ऑल राइट, देन यस, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर साल इससे आप क्वेश्चन देख सकते हो, वेदर दिस और दैट। और ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स आर द कैटेगरीज, मतलब दो कैटेगरीज थी। मॉडरेट्स वर द वंस दोज हु बिलीव्ड कि हाँ हमें हाथापाई नहीं करनी, एंड एक्सट्रीमिस्ट वर द वन जो हो सके करो, इंडिपेंडेंस के लिए जितना हो सकता है वी शुड फॉलो दैट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बिलोंग्स टू योर मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड, इट इज modern history. And this Gupta, Buddhism, and Chola Empire, all these belong to your ancient history plus middle history. ठीक है, और ये तो औरंगजेब तो आपके हैं ही मिडल हिस्ट्री के बादशाह, तो इनको तो वी कैन नॉट लीव, ठीक है। ये सब था आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हिस्ट्री के अंदर है, बस ज़्यादा कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, ओनली ऊपर ऊपर से अगर आपको चीज़ें के बारे में पता होगा। और हिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी खास बात है क्या, कि आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, यू जस्ट नीड टू हियर अबाउट द स्टोरीज, और वो स्टोरीज सुनो और बाद में जाकर के यू कैन जस्ट फ्रेम। बस ये बताना चाहिए कि आपको जैनिज्म का बुद्धिज्म में मिक्स नहीं करना, और चोला का वंद्य डायनेस्टी में मिक्स नहीं करना, तो दीज डायनेस्टीज आर टू बी केप्ट सेपरेट। देन वी हैव इज अनदर क्वेश्चन जिसका अगेन 25 मार्क्स है, मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, दैट इज दे आर सेइंग व्हाट, इनमरेट। इनमरेट मींस अगेन पॉइंट्स में होगी आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि बताओ कितने डिफरेंट स्टेजेस हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के इन इंडिया ड्यूरिंग नियो लिबरल एरिया। आपको पहले एक्सप्लेन करना है व्हाट एक्चुअली इज नियो लिबरल एरिया, एंड देन यू कैन जस्ट इनमरेट, or you can just write down the following points. Then you have the earthquakes are far sorry, earthquakes are by the far most unpredictable, highly destructive of all the natural disasters. Examine the statement with reference to seismological zones of India. पहले आपको बताना है seismological zones कौन से होते हैं, मोस्ट प्रिडिक्टेबल जोन्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पर है, और फिर आपको स्टेटमेंट के ऊपर जाना है विच सेज दैट earthquakes are most unpredictable. See, whenever there would be floods, whenever there would be volcanic eruptions, तो चीजें will be like ठीक है हो जाता है, but whenever but whenever there would be earthquakes, so बहुत ही ज्यादा unpredictable reasons आते हैं, आप सो करके उठे हो and suddenly there's a news erupting in the in your television saying that there was an earthquake of this of this of this, so like that things happen. Now ये तो देखो आंसर की टेक्निक हम वी कैन डिस्कस, क्वेश्चन पेपर वी कैन डिस्कस, बट द पॉइंट्स दैट हैज टू बी रिटन विल बी डिस्कस in your lecture sessions only. And this part belongs to your geography, ठीक है। Then we have is astronomical causes seem to be primarily responsible for the climate change. Digital agriculture mission is alternative for transformation in agriculture sector. Why are the frequent fires in semi-arid forest? आपको पहले बताना है सेमी एरिड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ सेमी एरिड फॉरेस्ट लाई करते हैं, एंड देन एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट फायर्स इन कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएस। तो इसी से आपको पता चलता है क्या रिसेंट दे आर सेइंग, तो बी रेडी विद योर करंट अफेयर टॉपिक्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो दैट आई विल बी ब्रिंगिंग, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन करंट अफेयर्स ओनली, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली फॉर योर, आई वुड सजेस्ट कि बुकिश बुक टर्म्स विल बी देयर, तो आप वहां से यू कैन रेफर, बट करंट अफेयर्स में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो आई विल ब्रिंग इट ऑन दैट। देन वी हैव इज अनदर क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज दैट यहाँ पर आपकी योजनाएं आएंगी और मोस्टली करंट अफेयर के टॉपिक यहीं पर आते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 7 to 8 पॉइंट्स लिखकर आ पाओगे, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको बताना है कि कौन सा सेशन था, कौन सी डेट को हुआ, और अनदर थिंग दैट यू कैन टेल इज व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, और इतना इम्पोर्टेंट था तो ISS ने पूछा ही क्यों,
तो ये 4 से 5 पॉइंट्स अगर आप भी बनाकर आ जाते हो इन दिस वन, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर दे सेइंग इज, दे आर सेइंग एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, चलो 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 बड़ा कर देते हैं, okay, they are saying that explain the benefits of pradhan mantri ujjwal yojana उजाला योजना अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये योजना है किससे रिलेटेड, इसमें रिलेशन बताना है, किसका फायदा होगा वो बताना है, और कब लॉन्च हुआ था, दैट इज द टाइम आपको इसका बताना है। तो 3-4 चीजें इफ यू विल मेंशन दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि उतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन, तो आपका फोकस होना चाहिए कहाँ, स्टैटिस्टिक्स पर, ठीक है जी। नेक्स्ट व्हाट आर दे सेइंग इज एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ यूएसए's डिसीजन to enhance tariff on several Indian goods on Indian economy. Does the non-convention, अब आप ये कब अटेम्प्ट कर पाओगे, ओनली व्हेन यू आर अवेयर कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। वहां जाके क्वेश्चन पेपर पढ़ के ऐसा ना लगे कि ओ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग द न्यूज, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर रीडिंग द न्यूज पेपर राइट नाउ, नो, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा रेगुलरिटी, सिंसेरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ इफ यू विल वर्क, यू विल स्कोर अबाउट, आई विल सजेस्ट 18 to 17 marks, and which I believe are more than enough for you to score AIR, good one, गुड AIR के लिए इतना काफी रहेगा, ठीक है। डज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैव द प्रोस्पेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन योर आंसर। तो पहले आप एक्सप्लेन करो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इट इज अ साइंटिफिक टर्म, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है ये टर्म है, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट अगर आपको पता होगा तो आपने देखा वेखा भी होगा, तो कहीं पर से आप वो एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके कुछ रिसोर्सेज होंगे वो एक्सप्लेन कर देना, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दैट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन। अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, तो टर्म्स ढूंढो और उनके बारे में एक्सप्लेन कर दो। सो ऐसा अगर आता है तो आपने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया, तो उसी से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा वेट, दिस इज ओनली फॉर 5 मार्क्स ना, तो आपको 1 या 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे, बेटर देन गेटिंग अ 0 आई गेस, ठीक है। नेक्स्ट इज मनरेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल तो ये चल भी रहा है, और इसके साथ एक और नई योजना आई है, वो आप कमेंट में मुझे बताओगे कि ये हटा दिया है, हटाया है, तो इसकी जगह क्या आया है, तो दैट कैन बी अ प्रपोजल क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हो क्या, AYQ, PYQ में हमने एक नया AYQ ढूंढा है, मतलब आने वाले ईयर का क्वेश्चन है, क्या होगा मनरेगा की जगह पर दैट नेम विल बी गिवन, जो आप कमेंट में लिखोगे वो, ठीक है। सक्सेसफुल वेलफेयर ओरिएंटेड एक्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पीपल इन इंडिया, ये लेकर कौन आया था, पहले तो महात्मा गांधी लेकर आए थे इसको, ठीक है जी। फिर अब ये हटा दिया गया है, इसकी जगह दूसरे बादशाह का नाम आया है, तो आपको बताना कौन है वो दूसरे बादशाह जिनका नाम आया है, इल्यूसिडेट करना है, मतलब बताना है, डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है, लाइक दैट। Another thing that we have is why is the concentration of industries very poor in northeastern part of India? What steps have been taken by the government of India to address this issue? ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो काफी कम क्यों है, और कम है अगर है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है, दैट ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लेन। सो दिस वॉज अबाउट योर करंट अफेयर टॉपिक, योर योजना, बेसिकली जितनी भी योजना स्कीम्स आई हैं ये उनसे रिलेटेड एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो सारा योजनाओं से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जितनी भी सारी योजनाएं हैं यू शुड नो अबाउट विच स्कीम इज कमिंग, द पर्पस ऑफ द स्कीम, चलो लिख देते हैं यहाँ पर। if you will be discussing anything about the schemes, so question number 3 में in order to study about question number 3 that is schemes, तो स्कीम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए लॉन्च, पर्पस, और कौन से बिल में इंक्लूडेड है या फिर कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, दैट आल्सो यू शुड नो, ठीक है। बेनिफिशियल
और कंट्रोवर्शियल इश्यूज। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता हो जाती हैं देन यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो बस इतने पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो दैट थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे बताया आपको, हिस्ट्री के लिए फॉर हिस्ट्री ये थे, हिस्ट्री के लिए लेट मी जस्ट चेंज द पेन, हिस्ट्री ओके। फॉर हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए बैकग्राउंड थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड पढ़ लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। और फिर वहां पर जितने भी चेंजेस आए थे, चेंजेस माइट इंक्लूड कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, बिल्डिंग पर्पसेस और स्ट्रक्चरल, और रेलेवेंट चेंजेस। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, रेलेवेंट चेंजेस। ठीक है, तो ये आ गए थे। और उसके बाद सक्सेसर्स आपको पता होने चाहिए और मेजर इवेंट्स इंक्लूडिंग बैटल्स। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए रीजन ऑफ डोमिनेंसी। रीजन ऑफ डोमिनेंसी क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर ये राजा रूलर थे, ठीक है, तो वो थोड़ी काम की नहीं होगी। तो दैट यू ऑल शुड नो। तो ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये जो है बेसिक स्कीम्स एंड योजनाओं से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ यू आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स अबाउट एवरी डायनेस्टी और एवरी पीरियड ऑफ रूल, एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ सच पॉइंट्स अबाउट एवरी योजना एंड स्कीम, तो आप 110% मोर देन लेकर आओगे इनसे मार्क्स। ठीक है, तो यही हमारा एम भी है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच सेज व्हाट। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन पॉज अ वीडियो एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच सेज व्हाट, द फोर्थ वन। ओके, अब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं पॉलिटी। इजी है बट रिमेंबर वाला खेल है सारा। किसका खेल है? मेमोरी का। सब मेमोरी के अंदर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, वरना तो नहीं। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू दे बिलोंग। कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आपको पता होना चाहिए। लिया कहाँ से गया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वी हैव गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो वहां से लिया गया है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आंसर करो जो भी आपसे पूछा गया है वो। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन है, और क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है तो ये थोड़ा मैं बोलूंगी आर्गुमेंटेटिव से रिलेटेड है। ये तो अभी जज भी डिसाइड नहीं कर पाए। खैर, अभी थोड़े दिन पहले तो नहीं, थोड़े साल पहले वर्डिक्ट आया था इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कुछ केसेस भी चले थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। क्या होता है पॉलिटी के अंदर, देर आर सर्टेन केसेस विच बिकम क्वाइट फेमस, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। ठीक है, तो सच थिंग्स हैपन, और वहां जहां ऐसी कुछ गड़बड़ घोटाला वाला सीन हो रहा होता है, वहां पहुंचता है कौन? आपका यूपीएससी। यूपीएससी goes there and it stands over there. It doesn't do anything, it just stands and take out the major topics so that it can poster those questions upon its candidates. ठीक है, तो बस यूपीएससी का वही काम था। देन इज फेडरलिज्म। आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट डज दिस मीन, लिया कहाँ से गया है, एंड फिर उसके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, कि काम क्या कर रहा है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल कमिटीज को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन इंश्योर फाइनेंशियल प्रायर प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट यू हैव इज sorry, examine the success and failures of the implementation of the 73rd constitutional amendment. Now you would be like कि इतनी सारी अमेंडमेंट्स है, 131 अप्रॉक्स अमेंडमेंट्स अभी हाल फिलहाल में 31st हुई है, तो इतनी सारी अमेंडमेंट्स है, हम कहाँ कहाँ तक याद करें? सारी याद नहीं करनी है। टू बी स्पेसिफिक, देयर आर ओनली फ्यू मेजर अमेंडमेंट्स। मेजर अमेंडमेंट्स ही आपको याद करनी है, और वहीं से क्वेश्चन टपकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, ऐसा इज द ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब वो वाला ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स यहाँ पर इट डिफाइन समथिंग, तो आपको उसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
कि ये वर्ड किससे जुड़ जुड़ कर बना है, तो दैट यू शुड नो. टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to serve the present world economic order. Now what you have seen, what I have analyzed over here is, ठीक है, क्योंकि statisticians तो आप हो, पर कुछ analysis I have done which says what, मेरे एनालिसिस में आ रहा है कि 2025 में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमी से पूछा गया है. ठीक है, तो आपको फाइनेंस और इकोनॉमी भी पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑल द थिंग्स बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन प्रिडिक्ट. तो एनालिसिस क्या कहती है, आपको इकोनॉमी और फाइनेंसिस का पता होना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वहां से हाई हेलो करते हुए मिल जाते हैं. पहला, जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल फंडामेंटल लॉज. आप बोलोगे कि हमें वकील नहीं बनना, लॉयर नहीं बनना, बट आई विल बी लाइक ऑफिसर तो बनना है. तो ऑफिसर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सामने वकील आके खड़ा हो जाता है तो हाउ टू डील विद दैट लॉयर एज वेल, है ना. तो ऑफिसर का काम यही तो होता है. देन इज फंडामेंटल लॉज के बारे में पता होना चाहिए, अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए, और लेगेसी किससे ली गई है दैट यू शुड नो, टेकन फ्रॉम. ठीक है, ये जो टर्म आई ना यहाँ पर, फेडरलिज्म, फेडरल, ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब लिए कहाँ से गए हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं. लिबर्टी, फेडरलिज्म, और भी बहुत सारी होती है लाइक सोशो इकोनॉमिक, देन यू हैव इज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी. सच टर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि उनका मतलब होता क्या है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है, आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आता. फेडरलिज्म का मीनिंग आता होगा तो 1 नंबर तो पक्का है आपका, एटलीस्ट यू नो व्हाट इज फेडरलिज्म. ठीक है, एंड आई व्हाट आई बिलीव इज वन इज ऑलवेज बेटर देन गेटिंग नथिंग. ठीक है जी, तो एनालिसिस के दौरान आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, और ये जो शॉर्ट शॉर्ट नोटेशंस हैं, ऑल दीज नोटेशंस की जो कंप्लीट आई विल से चीजें होती हैं, दैट ऑल्सो यू शुड नो. तो हमने ऐसे पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है पूरे पेपर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो. यहाँ पर आपका जो पहला पोर्शन था दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू हिस्ट्री, फिर आपका आया यहाँ पर ज्योग्राफी, फिर योजना और स्कीम से रिलेटेड था, एंड देन द लास्ट वन सेज अबाउट द पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड योर फाइनेंसेस. तो ये सब चीज़ें ही आपको बेसिकली पढ़नी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, डिटेल के अंदर जाना नहीं है. ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, 6-7 पॉइंट बना लोगे, रजिस्टर के अंदर 20 पॉइंट लिखे होंगे, उसके अंदर से एटलीस्ट 5-6 तो याद रह जाएंगे, वो भी लिख कर आ जाओगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर good marks. So this was all for today. You can type your queries in the comment section, and see you in the next lecture. Thank you.